Because I am not a believer that I have been given a task by somebody to be able to fit this society. My job is to make the best use of the time Allah has given to me. And I have surrendered myself to the truth of life. Now, from this point onward, and I have been given this opportunity to stand here, I am responsible for this time that Allah has given to me. Whereas when I was not here, I thought it that maybe Allah does not like me to go there. I don't know how. So I thought I was okay. But then there is some kind of priority, to be very honest, I don't really know when I'm going to be out of this situation. But if you are flexible, I will make sure that I will come away anytime. Alhamdulillah, that moment has also happened. The second objective of this lecture is that you can pick up some clues and hypotheses which I have developed personally and which I often tested during my practice. And being the researcher, being the scholars in your own area of specialization, you can maybe start doing research on that and try to bring it under some theoretical framework which I as a practitioner can do. So maybe the time has come when the practitioners and the theorists, they have to, come close to each other. So after you how can you motivate yourself, and after you would know how to motivate others based on the principle or based on the guideline which I will be sharing with you. At the end of the talk, I would like to take a few questions. And also I will leave a small article which I have written about many years back. I'm sorry, I was wrong 3 years, but 6 years back it was published, this article. And I will leave a copy of this article for your library, and then you can get copies and distribute who are interested in that. Its title is Motivating People to Practice Through Ages. My talk is basically based on this same article, and it will give you a summary of that. Now, if you compare the life, well, first of all, what do you mean by the quality of the life? This is the question which you should ask me. Quality of the life. Quality of life or quality of work? Okay, quality of life at work. To enjoy each and every moment of life. Okay. But quality of the life can then basically, right now I'm talking about what has changed. Let's first try to assess what has changed in the last 10-15 years. For those teachers who've been working in this university, if you start comparing yourself, the facilities which you have been given today with the facilities which you were given 20 years back, how would you compare? There are more facilities. There are more facilities. So, okay, अगर आप ये देखना शुरू करते हैं, the facilities are like, look at the gadgets which we are using now. ये गैजेट्स देखें, ये मल्टीमीडिया देखें, ये जमाने, ये लाइटें, ये बिजलियां, ये कुर्सियां, हम लोग तो टाट में बैठ के पढ़े थे। हमारे जमाने में तो I went to Central Model School and most of the time the classes used to be under a tree, open sky. उस वक्त हम ऐसे पढ़ते थे। आज बच्चों की तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें, कि क्वालिटी ऑफ फैकल्टी इवन देखें। जो आपको फैसिलिटीज हैं, हमारे जो वालिदैन थे वो बेचारे साइकिलों पे 40-40 मील घोड़ों पे सफर करके अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचते थे या किसी इदारे में पहुंचते थे। आप जिस तरीके से आते हैं 10 मिनट के अंदर, चाहे बहुत रश है लेकिन आप लोग आराम से पहुंच जाते हैं। फिर क्लासरूम, अगर आप इफ यू आर लकी एनफ टू बी अ पार्ट ऑफ बी अ स्टूडेंट इन अ प्राइवेट स्कूल, तो अगर आप ICMS में चले जाए तो क्लासरूम में जनाब एक डिस्टेंस लगे हुए हैं, बड़ा लग्जरी। एसोसिएट प्रोफेसर बेचारों का हमारे जमाने में डिपार्टमेंट हेड पे नहीं मिले होते। यहाँ तो स्टूडेंट्स जनाब है, पोजिशन से बैठे हैं, नीचे कारपेट्स हैं और बाद जो क्वालिटी की टाइल्स लगी हैं वैसे लगी हैं जैसे किसी आप 5 स्टार होटल्स में आ जाते हैं। दिस इज द जनरल क्राइटेरिया। सो बेसिकली फैसिलिटीज हैव ट्रेमेंडसली इंप्रूव्ड। चले, फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं, व्हाट एल्स हैव इंप्रूव्ड? इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। The information which is available today, एक जमाना था कि until unless you came to the library and you sat there for hours, it was so difficult to retrieve the information, for even the research, for the basic research. You were dependent on buying books, what maybe hundreds of rupees, but वो 100 rupees भी नहीं होते थे। यार where would I go? और बेचारे यूनिवर्सिटियों के पास इतने फंड नहीं होते थे कि उनको नई बुक्स जो सी आ सकें।
कि जी हार्वर्ड के रसाले आप सब्सक्राइब कर सकें, but those facilities are available. आप you can continue sitting at home and you have the access to the world's best literature. तो वो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन भी आपके सामने है. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ट्रेमेंडसली इंप्रूव्ड. नाउ इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है एंड देन कम्युनिकेशन ट्रेमेंडसली. एवरीबॉडी वुड हैव अ सेल फोन इन हिज हैंड. हर एक के पास फोन पकड़ा होता है. तो वो इंप्रूव हो चुके हैं. चले इतना काफी है. अब आप देखिए व्हाट हैज चेंज. अगर आप स्टाफ की सैलरीज पे आ गए, सैलरीज भी इंक्रीज हो चुकी हैं. पब्लिक सेक्टर में द परसेंटेज इंक्रीज इज नॉट एज हाई एज इन द प्राइवेट सेक्टर. हाउएवर जो आजकल इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं, बाद में आपने वर्ल्ड बैंक की प्रपोजल भी शायद उसकी थोड़ी सी समरी आई थी, पढ़ ली हो, कि जो नंबर वन टीचर्स की सैलरी इज गोइंग टू बिकम इक्वलेंट विद द प्रैक्टिशनर. नंबर टू the salaries in the private and the public sector are going to come almost the same band with the maximum difference of 15%, which is the worldwide practice. तो इसका मतलब है कि जो असिस्टेंट आपका जो लेक्चरर है, असिस्टेंट लेक्चरर 70 ग्रेड में, उसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से शुरू होगी. नो प्रपोजल ये 95 से अप्रूव पड़ी है. अब उसको द्वारा निकाल लिया गया. इट माइट टेक मे बी 4 more years by the time they can fully implement it, but that is coming out. वो होने वाला है. तो सैलरी हैंड इन हैंड. एक जमाने में हर 100 लोगों के पास 0.2 गाड़ी हुआ करती थी. अब हर 100 लोगों के पास तकरीबन लास्ट सर्वे आया है 17 गाड़ियां हैं. तो 17 वर्सेस 0.2 की आप परसेंटेज मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितने टाइम्स बनती है. इसी तरीके से टेलीविजन देख लीजिए पर कैपिटा, वो भी बढ़ चुके हैं. तो ओवरऑल इवन एज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द फैसिलिटीज स्पेशली एट होम आर आल्सो इंप्रूव्ड. सो फैसिलिटीज हैं एट होम. ओके, चलिए इससे यहीं से शुरू, हाइपोथेसिस यहीं से करते हैं. क्यूरियस यूनिवर्स कितना में पड़ी हुई है? थ्योरी आपने पढ़ी. ओके, आपने भी पढ़ी. तो थ्योरी एक्स सेज व्हाट? 60s में कि people inherently they dislike work and they need to be treated like animals and they have to be guided and they will not miss out on any opportunity to start doing the work which they will given until unless you enforce, until unless you use the power. ना उसके बाद थ्योरी वाई भी आपने देख ली. आजकल के दौर में एक जमाना था जबकि लोगों को ट्रीट किया जाता था, इस अदारे में भी आप देख लीजिए किसी और तरीके से ट्रीट किया जाता था. आजकल तो हमारे जमाने में भी हम जब बच्चे थे हमें क्यों नहीं ये लफ्ज आते नहीं थे. ये हमने कभी सुना भी नहीं था ये मूड क्या चीज होती है. आजकल तो इतना बच्चा दिया मम्मी मूड नहीं है. ये मूड कहां से आ गया? So आज ये आपको टॉकिंग अबाउट you can start looking around and see what is happening. बच्चे आजकल माँ बाप बेचारे they go crazy in trying to convince their offsprings जिनको उन्होंने पैदा किया है बेटा नहीं this is not the right way. तो इसका मतलब ये है कि people have been realized as emotional beings, so awareness than what it used to be. पहले कहते थे बच्चे की क्या इज्जत है, माँ बच्चे को 2 लाल पीले रंग के कपड़े लेके आती थी, वो बना देती थी. आजकल का बच्चा कहता है यार तुम तो और बेटी हो, मैं अपने कपड़े खुद खरीदूंगा. तो बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट है. माँ बाप बच्चों के कमरे में जब तुम करता है घुस जाते थे. आजकल माँ बाप बच्चों के कमरे में बेचार माँ घुसने स्कूल आने के बाद एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, यू डिड नॉट आस्क मी. तो इसका मतलब ये है एक जमाने में आप अपने घरों में इतने छोटे टाइम में इस टॉपिक को कहना मुश्किल है, लेकिन इससे पहले कि यू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्टेड, प्लीज डू अंडरटेक अ सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिसर्च. अफरा ताकिब और फिक्र करो, अफरा करो, देखें एंड योर एक्सपीरियंस विल टेल यू अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर. माए अपने माँ बाप से के जमाने में अपनी दादी को विजुलाइज करे, अगर आपने देखा है अपनी माँ को विजुलाइज करे, वो एक गांव में शादी करके जाती थी
और वो सारा दिन उस घर में रहती थी। आज की बच्चियों की शादी होती